Now, since we're done with the basics in this lab session, what we will focus on implementing basic digital circuits. So let's start the basic operations that are not and or nor XOR and XNOR. We can do these basic gates. We have already seen in previous labs how we can implement an AND gate and how to write. So if you do not know how to write the program for an and or gate, you can refer to the previous labs. How just to give you a very brief idea of the same, uh, if you want to implement any basic gate or universal gate or exclusive special purpose gates, the procedure has to be this. You will declare the library, which is not included in this program, but you know that the library has to be there, and it will look somewhat like this, the one at the top. These library declarations have to be there in every program. After that, you will write the entity part, which is over here. You will name it. So this is a two input gate, so two ports, port A and port B, and one output port. Obviously you understand port A is the variable name, A is the variable name. You can जहाँ पे आपको ये blue और pink color के words दिख रहे हैं, these are the keywords. The one in the black are the variables, and you can name them as you like. So my and 2, you can write my and 3 or any name. So these variable names can also be different, but you have to take care of the keywords only. So as you understand, A एक input है तो इसकी direction in होगी, लेकिन इसका जो data type वो होगा std logic. ठीक है ना? तो B का भी इस तरह in होगा, लेकिन data type होगा std logic. C जो है ये हमारा output होगा, तो इसका जो direction होगा out कहलाएगा, and data type is std logic. Moving on, we end the entity part, then move to the architecture part. Architecture, you can write X, Y, Z off, but यहाँ पे ये नाम जो है important है, वही होना चाहिए जो entity का नाम है. Is begin C is assigned as this. So by this, if you want to implement OR gate, you just have to change this function here. और बाकी सारा same रहेगा. OR, NOR, XOR, so सारे gates, basic gates मैं expect कर सकता हूँ कि आपसे हो जाएंगे within no time. Now, in this session, we have a special focus on one of the basic building blocks of digital circuit, that's a multiplexer. So let's move to the multiplexer part. This is one simple way to implement a multiplexer, and if I ask you people which type of implementation is this, जो हमने पिछली lab में पढ़ा, it is a data flow type, because you only have information about the gates with no information about structure, or specifically structure का तो idea मिल रहा है, but कोई ऐसे brute force या direct statements यहाँ पे नहीं है जिससे implement हो रहा है. So when you use assignment operator and the logic operators together, that is data flow. So let's understand this program. एक multiplexer है, multiplexer के पास आपके total 6 inputs होते हैं. 4 तो data lines होती है और S0 S1 आपकी select lines होती है. So D0 is the first data line, in is the direction, std logic is the data type, D1 in is the direction, std logic is the data type, and likewise for all others. Only one output is there, that is y. Y out होगा std logic इसका data type. आइडेंटिटी पार्ट हमारा हो गया, लाइब्रेरी पार्ट हो गया. अब बचता है आपका आर्किटेक्चर पार्ट. तो आर्किटेक्चर में आपने सिंपली सीधे बूलियन फंक्शन लिख दी, इसकी y is assigned as d0 तब आएगा आउटपुट पे जब not of s not of s not. If you remember the boolean equation, so if you want to search what is this, आपको कुछ नहीं करना है. boolean equation of a multiplexer देखिए, 4x1 multiplexer, वो exactly यही होगी. So data flow में आप more of like boolean expression सीधा सीधा उठा के implement कर सकते हो. So that is the advantage of a data flow type of representation. So this is one style of implementing a multiplexer. Likewise, I expect you to कि आप इसी स्टाइल से आप अपना डिकोडर जो है वो implement कीजिए. कुछ नहीं करना है, एक ब्लॉक डायग्राम बना ली, देखना है इनपुट्स कितने हैं, आउटपुट्स कितने हैं, और उसकी बूलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर दी. So here itself I assign you multiplexer करेंगे आप 4x1, encoder, decoder and demultiplexer. ये चारों सर्किट आप डेटा फ्लो से करेंगे. स्टेप नंबर 1. आप नेक्स्ट स्टाइल की तरफ जाते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी पूरी कवरेज हो जाए. कोई भी तो एग्जामिनर ने अगर लिखा होगा डेटा फ्लो इंप्लीमेंटेशन दीजिए डिकोडर की, तो आपके पास ऑलरेडी एक रिप्लाई होना चाहिए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टाइल. यहाँ पे जो आप स्टाइल देख रहे हैं, ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर को इंप्लीमेंट करने का एक डिफरेंट स्टाइल है. आई होप यू नो इट, क्योंकि प्रीवियस लास्ट बट वन लैब में हमने कवर किया था.
This style, since it gives no information about the logic operators used or else about the structure, this style is the behavioral implementation. Okay, तो क्या कर रहा है यहाँ पे, ये एक with s select टाइप का हमारे पास फंक्शन है इसमें VHDL में कि विद एस सेलेक्ट। एस क्या है? अच्छा जी, एक चीज देख लीजिए, आपका जो लाइब्रेरी पार्ट और एंटिटी पार्ट है वो सेम है, ये वाला, बस इसका आर्किटेक्चर का बॉडी जो है ये आप ये पेस्ट कर देंगे टू मेक इट अ डिफरेंट प्रोग्राम। आपको समझ आ रही है? मतलब खाली आर्किटेक्चर में चेंज है, बाकी वेरिएबल सब कुछ ये इसी एंटिटी का यूज कर रहे हैं। तो एंटिटी सेम रहेगी इस दूसरे स्टाइल के लिए भी, कॉपी पेस्ट कर देना आप अपने जाइनिंग्स में या अपने रिवॉर्डो में, और ये आर्किटेक्चर पेस्ट कर देना या लिख देना, सी द रिजल्ट। तो यहाँ पे भी क्या है, विद एस सेलेक्ट वाई, मतलब इसको समझिए, जब एस वेरिएबल जो है उसका वैल्यू होगा 0 0, y को असाइन कर दीजिए d नॉट। Okay, I can read it this way. With s select y as d naught when value of s is 0 0. Okay, next case. With s select value of y as d1 when 0 1, when value of s is 0 1. With s select value of y d2 when value of s is 1 0. So जो भी आपके वैल्यूज हैं वेरिएबल के इनपुट के, वो राइट में आएंगे, उनके केसेस आपको जितने भी बनते हैं उतने बनाने हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एवरी इनपुट केस आप एक आउटपुट डेडिकेट कर रहे हैं, और आप एक इनपुट डेडिकेट कर रहे हैं एज एन आउटपुट to your multiplexer. So by this you can make any logic gate also. Say if you want to assign, if you, अच्छा ये जो है ये वाला तरीका more of relates to the truth table. For example, if you want to design behavioral modeling for an AND gate, कैसे बनाएंगे? Simple है, AND gate का output suppose अगर y होगा, y is assigned as, यहाँ पे आप a b लिखेंगे, दो inputs when a b is 0 0. ओके, लेकिन वहां पे ए और बी की पहले कंकैटिनेशन करनी पड़ेगी। कंकैटिनेशन मींस दैट यू जॉइन द टू वेरिएबल्स टुगेदर, तब जाके वो दो वेरिएबल बनेगा। सो व्हेन ए बी इज इक्वल टू 0 0, y इज असाइंड एज 0। व्हेन ए बी इज इक्वल टू 0 1, y is assigned as 0। व्हेन ए बी इज इक्वल टू 1 0, y is assigned as 0। एंड व्हेन ए विद AB equal to 1 1, y is assigned as 1. So that is how an AND gate can be implemented. Likewise all other gates. तो ये वाला जो बिहेवियरल स्टाइल है ये मोर ऑफ रिलेट करता है ट्रुथ टेबल को। अगर आपको किसी सर्किट का ट्रुथ टेबल पता है, उस ट्रुथ टेबल से आप अपने सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं जस्ट यूजिंग सिंपली बिहेवियरल मॉडलिंग। ठीक है जी, हो गया। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन। द थर्ड, अच्छा यहीं पे मैं आपको असाइन कर देता हूं, आप यूजिंग दिस कर लेंगे। उसमें कुछ नहीं करना है, आपको अपना ट्रुथ टेबल देखना है सर्किट का, एंड देन हैव मेक अ ब्लॉक डायग्राम एंड इम्प्लीमेंट देम अकॉर्डिंगली। तो एंटिटी जो है सबकी एंटिटी और लाइब्रेरी सेम रहेगी। तो तीसरा स्टाइल जो आपके पास है, इसके लिए भी एंटिटी और ये सेम रहेगा। rather एक तीसरा स्टाइल नहीं है, बेसिकली आप यहाँ पे भी बिहेवियरल मॉडलिंग ही कर रहे हैं, लेकिन आप प्रोसेस के अंदर बिहेवियरल मॉडलिंग कर रहे हैं। ये आपको इसलिए समझाने के लिए है कि प्रोसेस के अंदर हम कॉम्बिनेशन डिजाइन कभी बना सकते हैं। तो आपके पास मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशन सर्किट है, लेकिन आपने यहाँ प्रोसेस यूज किया, तो क्या है प्रोसीजर प्रोसेस का प्रोसेस? सेंसिटिविटी लिस्ट begin case s is, ठीक है, s is assigned as, sorry, when s is 0 0, y is assigned as d naught। when s is 0 1, y is assigned as d1। when s is 1 0, y is assigned as d2। when s is 1 1, y is assigned as d3। when others, y is assigned as 0। ये भी आप ये वाला केस इवन विद स्टेट वाले में भी डाल देंगे। when others 0, यहाँ पे भी ये डाल दीजिएगा when others 0 नेसेसरली, कभी एरर आता है इसकी वजह से। so when others आप लिखिएगा y is assigned as 0। so in this case when you are using a process, याद रखिए प्रोसेस के अंदर आप केस हमेशा प्रोसेस के अंदर ही यूज कर सकते हैं, और एंड केस आप करेंगे, एंड प्रोसेस करेंगे। अदरवाइज इसको एक बार यूज करके देखिए केस को प्रोसेस के बाहर भी, वर्क आल्सो, एंड you can have a different experience about this particular case also. So you have to end case, end process and end architecture, that's an additional job. So यहाँ पे भी आप process के अंदर क्या यूज कौन सा यूनिट करेंगे? डिकोडर, एनकोडर और
आप यूज करेंगे अपना, सॉरी आप implement करेंगे multiple, so that you have a clear idea of implementation of any combination of features or logic using process. You have an idea of different model implementation styles. अब जो एक स्टाइल वहां पे बचता है, हमने अब खाली कंपोनेंट वाला, आई मीन स्ट्रक्चर वाला अभी नहीं देखा, maybe we will see that also in near future. So not to um, waste any more time, let's see the fourth style also, that hierarchical design using components. तो इस वाले डिजाइन में हम क्या करते हैं, हम अपने कंपोनेंट को जिसको हमें यूज करना होता है उसको पहले ही बना देते हैं, कंपोनेंट को पहले यूज करते हैं, आई मीन उसको यूज करने से पहले वी मेक दैट कंपोनेंट, ओके। तो फॉर एग्जांपल मेरे को नैंड 2 एज अ कंपोनेंट यूज करना है, तो मुझे पहले अलग से इसको बनाना है, एक प्रोग्राम लिखना है तो एंड जिस प्रोग्राम में इसको यूज करना है वहां पे इसको एज अ कंपोनेंट डिक्लेयर करना पड़ता है जस्ट आफ्टर द आर्किटेक्चर एंड जस्ट बिफोर द बिगिन ऑफ दिस आर्किटेक्चर। सो कंपोनेंट माइन एंड टू इज, इसका जो ये वाला पार्ट है इट इज एग्जैक्टली सेम एज एंटिटी, जिस तरह हम एंटिटी इस गेट की डिक्लेयर कर चुके होंगे, लेकिन एक डिफरेंस है, यहाँ पे कंपोनेंट आएगा एंटिटी के बदले और यहाँ पे एंड कंपोनेंट आएगा एंड एंटिटी के बदले, बाकी सारा सेम रहेगा। तो ये सिग्नल डिक्लेरेशन, सिग्नल सी एस3 लॉजिक। So now what you do is you will instantiate this. Instantiation क्या है? Instantiation is as good as calling this module. So my and to port map, A को आप assign कर रहे 0, you can give values directly 0 and B को कर रहे 1. So C में आपका आउटपुट आएगा जो कि सिग्नल C है और C इसका आउटपुट है वो डालेगा सिग्नल C के अंदर, ठीक है। अच्छा ये आप सोच रहे कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा C C, लेकिन इसको पता है क्योंकि ये असाइन हो रहा है इसको, तो बाय दिस कंपाइलर अंडरस्टैंड्स दैट ये वाला सी किसका है और ये वाला सी किसका है। ऑब्वियसली ये जो सी है सिग्नल उसी को असाइन होगा इस कंपोनेंट का आउटपुट, बिकॉज कंपोनेंट का आउटपुट एक्ट्स एज इनपुट फॉर दिस मॉड्यूल, तो इस मॉड्यूल का फाइनल आउटपुट असाइन हो रहा है ऑब्वियसली फ्रॉम द वैल्यू ऑफ दिस सी। सो ये कंपाइलर इंटरनली अंडरस्टैंड कर पाता है। So that marks the end of this session. See you in the next.